without further delay, we will turn over the time over today's speaker, Dr. Navneesh Tyagi. Dr. Tyagi has an 17 years of career span of industrial as well as academics. She has qualified NET twice in management and human resource. She is masters in management as well as MCOM specialization in human resource management. Dr. Tyagi has written and presented more than 20 research papers in national and international journals and conferences. She has also received national and international award of guest faculty. She is a certified trainer of management simulation lab of BizLab by All India Management Association as well as ERP SimY faculty at HEC Montreal. Welcome, ma'am. Thank you very much, sir. In the beginning, I would like to thank Dr. Priya for inviting me and hosting this event. And thank you very much, Madhav sir, for your very kind words of wisdom. And I would like to appreciate the efforts of Honorable Vice Chancellor Professor Narendra Kumar Taneja ji and Professor Jaimala ji and Professor Neelu Jain Gupta ji. For taking these very valuable and informative sessions for our students. Now, without taking much time, I would like to move on to the topic of today's session, which is learning. We will learn about the process, theory, and practices of learning in this session. And in this presentation, we'll be discussing about the elements of learning, characteristics of learning, classical conditioning theory, operant theory, cognitive theory, and social learning theory. So I would like to ask my participants if they have any confusion regarding their way of understanding things, the way they do not understand different things, the way they don't get motivated to study, they can ask their question in the chat box. And Navneesh ma'am, yes. I would like to interrupt, sorry. I just want to say that all the students will be beneficial if you will be bilingual while, discussing all these things. Okay, I'll try to... It's a kind request from us. जी 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 ठीक है. I'll try to be bilingual during this session. So लर्निंग क्या है? लर्निंग एक सीखने की प्रक्रिया है और सीखना हर इंसान का अपने तरीके से होता है. लर्निंग बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है कि हम जो सीख रहे हैं वो हम कैसे सीख रहे हैं and how can this learning be very prompt and very brief. So learning is any permanent change in the behavior of a person that occurs as a result of experience. This definition is given by a scientist named S.P. Robbins. इनके हिसाब से लर्निंग एक वो परमानेंट चेंज है बिहेवियर में जो कि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है. सो यहाँ पर लर्निंग की डेफिनेशन में हमें तीन बातें गौर करने की हैं. सबसे पहले देयर शुड बी अ परमानेंट चेंज एंड सेकंड देयर शुड बी the involvement of behavior of a person, and the third thing, results and experiences. See, हम जब भी कभी कुछ चीज सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसमें क्या है, एक इंसान इन्वॉल्व है और उसके किसी बिहेवियर को हमें या तो चेंज करना है या उसे खुद को चेंज करना है, और वो जो चेंज है वो कुछ रिजल्ट्स के साथ ही होगा और उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि वो लर्निंग उसकी कैसी हुई है. तो ये जो लर्निंग है इसके डिफरेंट आयाम हैं
जैसे कि लर्निंग हम एजुकेशन से करते हैं, हम जो भी हमारी एजुकेशन है वो हमारी लर्निंग को डिसाइड करेगी, डिफाइन करेगी। हम ट्रेनिंग लेते हैं डिफरेंट, उससे हम लर्न करते हैं। हम खुद से कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और हमेशा लर्निंग में प्रैक्टिस तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही। अगर हम कुछ भी चीज सीखते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो लर्निंग नहीं होगी, परमानेंट तो हो ही नहीं सकती। और अगर हम प्रैक्टिस किसी चीज को सीख भी लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते तो बहुत ही जल्दी वो अनलर्न कर लेते हैं हम। ऑल्दो लेटर ऑन वी कैन वेरी क्विकली resume our learning by practicing again. And fourth very important is the experience. अगर उस learning से जो outcome हुए, consequences हुए, अगर हमारी पसंद के हैं, favorable हैं, तो हम वो सीखते हैं, otherwise हम नहीं सीखते हैं। हमेशा learning नहीं होती, हर इंसान सीखता नहीं है। ये इंसान के अंदर की भी बात होती है कि उसे सीखना क्या है और सीखना कितना है। So elements of learning में अभी जो हमने बातें करी, इसमें चार एलिमेंट्स हम देख रहे हैं। नंबर 1 is the learner. Who is a learner? Learner is that person who will be changed after learning, and learner is the person who want to learn things. Second thing, stimuli. Stimuli is anything which provoke action. अगर कोई चीज है और उससे मैंने कुछ बिहेव किया, कुछ एक्ट किया, that means वहां पर लर्निंग हो रही है। Third thing, there are numerous stimuli in the environment, and there are many learners, but everybody is not learning. Every stimuli is not resulting in learning. Why? Because there are internal conditions in every person. तो हर इंसान के अंदर अपनी अपनी मोटिवेशन होती है, अपना एटीट्यूड होता है, अपनी नीड्स होती हैं, अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, तो उन्हीं के हिसाब से वो सीखते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो स्टिमुलाई सिलेक्ट करते हैं कि किस चीज पे मुझे रिस्पॉन्ड करना है, किस चीज पे नहीं करना है, किस चीज को मुझे सीखना है, किस पे नहीं करना। तो इसीलिए हम सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हर स्टिमुलाई पे वो बिल्कुल अलग होते हैं। एंड फोर्थ एलिमेंट इज द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स करने का भी सबका अपना एक अलग तरीका होता है, वो ऊपर लिखे तीनों एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं लर्निंग के, अगर ये समझ में आए हैं बच्चों, तो आप अपने चैट बॉक्स में टाइप करें यस, वाई, और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। सो आर यू राइटिंग स्टूडेंट्स? Yes. Okay. All right. Fine. So अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की। लर्निंग में लर्निंग अगर हो रही है तो उसमें कौन सी ऐसे फीचर्स हैं जो होंगे ही होंगे। सो नंबर 1 इज इट इन्वॉल्व्स चेंज। इट इन्वॉल्व्स चेंज मीन्स जो चीज पहले हो रही थी वो चीज अब नहीं हो रही है, उससे अलग हो रही है। जब भी सपोज यू वांट टू लर्न ड्राइविंग, सो ड्राइविंग में सबसे पहले क्या होता है, आपको नहीं आता है कि कैसे ड्राइविंग होती है, पर आप अगर ओके सो अगर आप ने ड्राइविंग सीख ली तो इसका मतलब आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तब आप ड्राइविंग करना शुरू कर देंगे। पहले आप हाथ नहीं लगाते थे स्टीयरिंग को या पेडल को, अब आप वो सब कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो रही है, ड्राइविंग एक्टिविटी हो रही है। सो लर्निंग हो रही है तो एक्टिविटी इन्वॉल्व है। इंटरैक्शन जरूरी है यहाँ पर। इंटरैक्शन किसका, इंटरैक्शन लर्नर का विद स्टिमुलाई which results in a particular response. So यहाँ पर इंटरैक्शन जरूर होना चाहिए। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनर और ट्रेनी के बीच में इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। अगर वो इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो लर्निंग कैन नॉट हैपन। हम इन्वायरमेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं डेली, तो इन्वायरमेंट और हमारे बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात? अगर समझ रहे हैं तो टाइप करें यस। यस, कम अप। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। तो अगर आपको ध्यान देना है, मुझे बताना भी पड़ेगा कि आप ध्यान दे रहे हैं, ताकि मैं उसी फ्लो में अपना लेक्चर आगे प्रोसीड करूंगी। ओके फाइन फाइन, वेरी गुड, यू आर रिस्पॉन्डिंग। सो नाउ इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सी लर्निंग, हम आप कैसे क्या सोचते हैं, कभी आप सीखना छोड़ देंगे तो क्या जीवन रुक नहीं जाएगा?
हम हर वक्त, हर घड़ी, हर मोमेंट कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हम नोटिस भी नहीं करते हैं कि यस वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स. दिस लर्निंग विल हैपन टिल द डेथ ऑफ द पर्सन. सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. यहाँ पर रेंडमनेस इन्वॉल्व है. ये नहीं है कि हम इसे, कई बार क्या होता है हम चाह भी नहीं रहे होते हैं और वो हम सीख लेते हैं क्योंकि हम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, हम उस चीज को नोटिस कर रहे थे कि हम उस चीज को नोटिस कर रहे थे कि वो चीज ऐसे कंसिक्वेंसेस को लीड कर रही थी. यानी कि हमने जैसे देखा कि एक बच्चे ने शोर मचाया तो टीचर ने डांट दिया, तो इसका हमने हमने बेशक ध्यान नहीं दिया, बट हमें वो चीज पता लग गई कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें भी डांट पड़ सकती है. सो देयर इज अ रैंडमनेस, चाहे ना चाहे. सो this is what is happening. And then प्रॉब्लम सॉल्विंग. हम कभी भी कोई चीज सीखते हैं तो हम किस लिए सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं ताकि हमारा जो कोई प्रॉब्लम हमें एनकाउंटर हो रहा है वो प्रॉब्लम हमारा दूर हो जाए. और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व है. देन नेक्स्ट थिंग इज लर्निंग इज बियॉन्ड थिंकिंग. हम जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा भी हम लर्न कर लेते हैं. और क्योंकि हमारे अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं माइंड के, सिचुएशंस के, और जिस भी प्रवृत्ति से हम बढ़े हैं उस हिसाब से. चलिए, अब अगर ये लर्निंग के एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आ गए हैं तो प्लीज राइट यस, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके, क्योंकि अब हमें जो सीखनी है वो है थियरीज ऑफ लर्निंग. लर्निंग थियरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर सो मेनी लर्निंग थियरीज. तो आप मुझे बताएं, आपको अभी तक बात समझ में आई है? लर्निंग बेसिकली है क्या? व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑल अबाउट? नाउ विल, ओके फाइन, गुड, ग्रेट. सो अब हम बात करते हैं लर्निंग की. What are the different theories of learning? देखिए, लर्निंग के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बातें कही हैं. कोई कहता है कि लर्निंग हम हिट एंड ट्रायल से लेते हैं, कि हमने कोई काम किया, वो अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, हमने सीख लिया, ये इसका बेस्ट तरीका है करने का. कुछ कहते हैं कि हम ट्रेन कर सकते हैं लोगों को, बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, तो ये हम सिखा सकते हैं, तो सिखाने का एक पर्सपेक्टिव है. कुछ कहते हैं कि सिखाने से कुछ नहीं होता, हर इंसान के अंदर अपनी एक डिमांड होती है कि हमें ये चीज चाहिए. अगर उसके फेवर की होती है तो वो सीखते हैं, नहीं होती है तो नहीं सीखते हैं, चाहे आप कितना भी उनको ट्रेन करें. एक पर्सपेक्टिव है कि हम इन सब चीजों से तो सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, बट अपनी एक समझ होती है, जैसे हम कहते हैं कोग्निशन के हिसाब से सीखते हैं. देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो उसमें हम सब थियरीज को तो इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में नहीं डिस्कस कर सकते, बट जो 4 मेजर लर्निंग थियरीज हैं हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. सो नंबर 1 इज द क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी. It is a very famous theory in psychology about learning. So classical conditioning was given by Ivan Pavlov in 1808, and later on he was rewarded with the Nobel Prize in 1904 for this. Although he was a Russian physiologist, but उसकी ये जो theory है वो psychology में बहुत useful थी, इसलिए इसको include किया गया. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था? उसने he offered a meat to the dog, and what he saw that the dog starts salivating. तो यानी कि meat and salivation, these two stimulus and responses are interrelated. तो यहाँ पर हमें ये सीखने की बात है, there are natural stimulus, and for those natural stimulus there are natural responses. अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप खुश होते हैं, कुछ बुरा होता है तो आप दुखी होते हैं. बट हम इस चीज को अगर किसी चीज के साथ एसोसिएट कर दें तो हमारा यही सेम रिस्पॉन्स उस अननेचुरल स्टिमुलस के साथ भी प्रोवोक हो सकता है. तो देखिए, पावलोव ने क्या किया, उसने
स्टार्ट किया कि जब भी वो प्रपोज करता मीट, तब एक बेल रिंग करता और डॉग जो है वो सेलाइवेशन स्टार्ट कर देता। एक बार, 2 बार, 3 बार उसने यही प्रोसेस रिपीट किया कि जब भी मीट ऑफर करना है तो तभी बेल बजानी है। तो फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, whether this meat is proposed or not, dog starts salivating with the ringing of the bell. यानी कि ringing of the bell was a conditioned stimuli, it was unnatural for salivation to happen. But now what we are seeing, that bell is now associated with meat. तो हमने एक एसोसिएशन कर दिया कि अब अगर हमें सलाइवेशन चाहिए डॉग ताकि अपना हंगर को रिप्रेजेंट कर पाए, तो हम बेल रिंग करेंगे और डॉग विल स्टार्ट सलाइवेटिंग। तो इस चीज से हमें ये देखिए, हाँ स्क्रीन पे आपको पता लग रहा है कि नेचुरल स्टिमुलस पे एक नेचुरल रिस्पॉन्स आया, फिर पहले ये अनकंडीशनड था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया, फिर हमने इसकी कंडीशनिंग कर दी, मीट की कंडीशनिंग विद द बेल। अब क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कंटिन्यूड है। फिर हमने क्या किया, हमने जो अनकंडीशनड स्टिमुलाई था उसको हटा दिया और कंडीशन स्टिमुलस के साथ वो नेचुरल रिस्पॉन्स जो कंडीशन रिस्पॉन्स था उसको दिखा दिया। ठीक है, तो ये ही तरीका होता है ट्रेनिंग में। हम ठीक है, आप भी कर दियो, आपको याद तो है, बता दूंगा कहाँ से हो गए। ठीक है, और देख जैसे हाँ मेरा नाम excuse me, if you have unmuted your audio, please mute your audio. Vikas, mute yourself. Okay, ma'am, start. Please start. Yes. Then we have this theory of classical conditioning. It is a learning through association of two stimuli to produce a new learned response. यानी कि हमने जो लर्निंग की है ये हमने किसी दूसरी चीज के साथ एसोसिएट करके एक नई चीज के साथ उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को एक्सट्रैक्ट किया है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में। Second very important theory of learning is the operant conditioning theory. पहली थ्योरी में क्या था कि एक स्टिमुलाई था, उसको किसी और स्टिमुलाई के साथ एसोसिएट किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये स्टिमुलाई को ना करके एसोसिएट, जो उसका रिस्पॉन्स था उसको एसोसिएट करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग कहती है कि जो हमारा कंडीशनिंग का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलाई पे हम कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं, अगर उस रिस्पॉन्स से हमारा कंसिक्वेंस बढ़िया है, हमारे हिसाब से है, फेवरेबल है, रिवॉर्डिंग है, तो हम उस रिस्पॉन्स को फ्यूचर में कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। यानी कि लर्निंग के लिए एक पॉजिटिव कंसिक्वेंस होना चाहिए रिस्पॉन्स का। इसी प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइजेशंस में लोग अप्लाई करते हैं। लाइक जिस भी रिस्पॉन्स को उन्हें बढ़ाना होता है या अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर बनाना होता है कि ऐसे ही करना है, तो उस रिस्पॉन्स पे हमेशा मैनेजर रिवॉर्ड देता है। Here, a particular behavior is followed by a reward or punishment. Through this, an association is made between a behavior and its consequences. तो हमारी यहाँ पर जो लर्निंग हो रही है, it is based on the law of effect. अब देखिए ये किसने दी थी? This theory was given by B.F. Skinner. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के साथ। वहाँ पिछली जो थियरी थी हमारी, वहां पर हमारा एक्सपेरिमेंट जो था वो डॉग के साथ किया गया एक्सपेरिमेंट था, और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट किया गया है हमारे माइस के साथ। इसमें क्या है कि उन्होंने कुछ फूड रखा और उसके साथ ये जैसे आप देख रहे हैं कि एक डोर था, अगर वो फूड के पास जाता था तो ये बंद हो जाता था दरवाजा। तो धीरे धीरे उस चूहे ने समझना शुरू कर दिया कि अगर मैं इस खाने को लेने जाऊंगा तो ये यहाँ पर उसको पनिशमेंट एक तरह से मिल रहा था। तो अब आगे जाके वहां पर चाहे खाना रखा हो या ना रखा हो, वो चूहा नहीं जाता था। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में
जो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे होते, मेहनत से काम नहीं कर रहे होते, तो उनको प्रमोशंस रोक दिए जाते हैं। तो प्रमोशन रोक दिए जाते हैं, देन दे विल बी कंपेल्ड टू वर्क हार्ड। और जो वर्क हार्ड करते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उनकी पे हाई करने लगते हैं, तो फिर हार्डवर्क को प्रमोशन मिलता है, वो हार्डवर्क करते रहते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ लर्निंग इज अ कोग्निटिव लर्निंग थियरी. According to this theory, these are the outcomes of deliberate thinking about the problem or situation, about both cognitively and based upon known facts and responding in a goal oriented manner. अब ये जो थियरी है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, इसमें हर इंसान की कोग्निशन इन्वॉल्व है, उसका अपना इंट्यूशन। कोग्निशन क्या होता है? इंसान की समझ। सो जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने साथियों को देखते हैं और उनके कंसिक्वेंसेस के आधार पे हम अपनी समझ बूझ लगाकर उस पर्टिकुलर काम को करते हैं। और यही कारण है कि एक ही काम को करने के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके होते हैं और उनके डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। जैसे कुछ एम्प्लॉइज हैं, वही काम करेंगे और उसमें मिस्टेक्स बहुत सारी करते हैं। वही काम दूसरा इंसान कर रहा है, वो मिस्टेक्स कम कर रहा है, एक्सीडेंट्स कम हो रहा है, उसके वेस्टेज कम हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है किस चीज पे? अपने कोग्निशन पे, कि उनका अपना माइंड कितना डेवलप्ड है, कितना नहीं है, वो किस तरह से फैक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए उस काम को करते हैं। अब जैसे आप देखिए, आप परचेज करने जा रहे हैं, एक जीन्स ही परचेज करने जा रहे हैं। सो देखिए, आपको जीन्स लेनी है, आपने ए ब्रांड को ट्राई किया, आपने देखा कि इसमें जो है लेग्स लूज हैं। दूसरे ब्रांड को ट्राई किया, आपने देखा कि सीट पे ये जो है टाइट है। एंड देन आपने जो है तीसरे ब्रांड को सिलेक्ट किया, तो आपने कहा कि ये तो बैगी है, और चौथे ब्रांड को किया और वो फिट आया। तो ये आपकी अपनी समझ है ना, आप उठ के बैठ के साइड में हर तरह से आप अपनी तरह से चूज करते हैं। तो अब आप कई बार क्या होता है, धीरे धीरे आपको लर्निंग हो जाती है, आपके एक्सपीरियंस के साथ भी आप इसको सीखते हैं। तो cognitive learning takes place entirely inside the mind and did not involve any behavior of physical motion. जैसे हमने पिछली बार कहा कि there were physical events called stimuli, उनसे हम सीख रहे थे। There were physical motion of responses, consequences, उनसे हम सीख रहे थे। यहाँ पर कोई फिजिकल मोशन या बिहेवियर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर हमारे अपना एंटायर माइंड इन्वॉल्व है लर्निंग में, एंड दैट्स इट। लर्निंग में ये जो कोग्निटिव लर्निंग है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें एक मेज बनाया गया था, एक भूल भुलैया बनाई थी और चूहों को एक साइड रखा गया था, और चूहे और दूसरी साइड रखा गया था फूड। अब चूहे को क्योंकि वो स्मेल आता है फूड का, तो ही वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ दैट फूड। तो उन्हें खुशबू आ रही है, चाहे कितनी भी भूल भुलैया बना लीजिए, वो धीरे 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 समझ जाएंगे कि मुझे उस फूड तक कैसे जाना है। तो उस एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स बनाए गए थे चूहों के। एक में फूड रखा गया था और एक में फूड नहीं रखा गया था। तो जिसमें फूड नहीं रखा गया था, तो चूहे थोड़ी बहुत देर घूमे और वापस आ गए। कोई जरूरत नहीं है उस भूल भुलैया को क्रॉस करने की। तो यानी कि अगर हमारा कुछ गोल है, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उस चीज के लिए जरूर से जरूर मेहनत करते हैं और अब उस काम को कर लेते हैं। जैसे अगर हमें प्रमोशन चाहिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा अपनी हर तरह की बुद्धि लगा के उस काम को पूरा करेंगे, ताकि हमें नेक्स्ट प्रमोशन में इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, कि हमारा प्रमोशन हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज ऐसा करते हैं। तो ये कॉग्निटिव लर्निंग के थ्रू हो रहा है। लास्ट थियरी जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, वो है सोशल लर्निंग थियरी। इसमें क्या है, पहले की जितनी भी थियरीज हैं, जिसमें कि हम ये कह रहे हैं कि जो आपका एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है या उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, आपका दिमाग है, वो यूज करना है नहीं। इसमें सोशल लर्निंग में क्या होता है, हम देखते हैं और देख के हम सीखते हैं अपने गोल को निर्धारित करके। अभी क्या होता है कि इंडिविजुअल्स लर्न बाय बीइंग टोल्ड अबाउट समथिंग और ऑब्जर्विंग अदर्स। जैसे आप देखेंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो बेटियां माँ की तरह होती हैं और बेटे
पिता की तरह होते हैं। वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक आइडियल बनाया हुआ है, बेटी ने माँ को और बेटे ने पिता को, और वो उन्हीं देख देख कर वैसे सीख रहे हैं। जैसे अभी आगे मैंने एक एग्जाम्पल रखा भी है समझाने के लिए। इसी तरीके से जो नए ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, नए एम्प्लॉइज अपने बॉस को देख के, अपने मैनेजर को देख के सीखते हैं कि उन्होंने कौन सी चीज की और उसका क्या कंसिक्वेंस हुआ, वो उस हिसाब से आगे करते हैं। There are patterns of specific behavior and their consequences which are observed and learned. Social learning integrates the cognitive and operant approaches to learning. देखिए कोग्निटिव तो यहाँ पर उन्होंने अपनी समझ लगाई कि देखिए वो पर्टिकुलर, जैसे मोदी जी हैं, हम उन्हें आइडियल बनाना चाहें तो हमें ये पता है मोदी जी ऐसे पहनते हैं तो ठीक है, ऐसी बाजू वाला आदमी जो है अप्रिशिएट होता है, जैसे उनका ड्रेसिंग स्टाइल है, तो वो हमारा कोग्निशन है। और दूसरी बात है ऑपरेंट अप्रोचेस, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि उनको फेवर मिल रहा है, इसलिए वो उन दोनों चीजों को अडॉप्ट करके लर्निंग करते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल में मैंने सिखाया है कि भाई माँ को अगर कोई चीज सिखानी है तो वो दिखा के सिखा रही है, और यही हम अपनी टीचिंग में भी करते हैं आजकल, आईसीटी मोड के थ्रू अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और जैसे हम MIT बी स्कूल में भी करते हैं। हमारा जो एक सिमुलेशन लैब है जिसे हम बिज लैब कहते हैं, उसके थ्रू जो भी आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं उस सब चीज को हम प्रैक्टिकली करवा के बच्चों से, जैसे कि आप अपने मैनेजमेंट में सीखते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में, तो डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस क्लास में डिस्कस की जाती हैं वही आप प्रैक्टिकली करके उस चीज को सीखेंगे, देख देख कर कि क्या हो रहा है। ये इसी के साथ मैं अपनी जो सेशन है इसको एंड करना चाहती हूँ। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, दे कैन टाइप देयर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स and ask their question if it was perfect, because we are running very short of time and we cannot proceed our session more than 40 minutes. So please, I welcome your questions if you want to ask. I think the time, Priya ma'am, what's the time? If yes, is there anybody who is having any question? You can ask freely. Ma'am, can you unmute everyone so as they can raise their hands? Students, there are options where you can raise hand. Raise your hand and we will unmute you. Actually they have muted themselves. They can unmute themselves. Okay, by their own. You unmute yourself and then ask the question if you want. Khushbu wants to say something. Khushbu, do you want to say something? Mohit, what do you want to ask? So, okay. There are questions. Someone is asking about cognitive learning, childhood to teenager learn. Yes, here I can tell you. See, मैंने जो अपना एग्जाम्पल दिया था कि बेटियां माँ की तरह होती हैं और बेटे पिता की तरह होते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि जब वो कॉलेज में जाते हैं तो पर लग जाते हैं उनको। ये भी एक कोग्निटिव लर्निंग का ही फेज है, और सोशल लर्निंग इसमें rather ज्यादा इन्वॉल्व है कि हम अपने साथियों को देखते हैं जैसे वो कर रहे हैं और उनका जैसा उनको कंसिक्वेंसेस मिल रहे हैं, लोग फेवर कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी लाइकिंगनेस हो रही है, तो जो हमने सीखा हुआ होता है वो हम कोशिश करते हैं कि उसको अनलर्न करके हम नई कुछ चीज सीखें। अच्छा, Yash, do you want to ask any question? You're raising hand. Then someone is asking about random learning. Random learning is nothing but a chance learning. हम सीखना नहीं चाह रहे हैं, but हम सीख रहे हैं, हो रहा है क्योंकि स्टिमुलाई मिलते जा रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्स उस पे आता जा रहा है, तो इंट्यूटिवली वी आर लर्निंग।
Yes, students. I think because Questions are there? actually it is about to close. The session is about to close. So in the end, I would like to thank the whole organization for listening to me very patiently, appreciating your really your in the chat box are really very encouraging, and thank you very much, and I'm very happy, and thank you very much Dr. Anita Jain ma'am for your appreciation, Dr. Priya, Dr. Madhav, Shikha Vashish ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Nanish ma'am, for such a wonderful session for our students. Now I would like to call Dr. Shikha Vashisht for vote of thanks. Shikha ma'am. Okay, thank you, Dr. Priya ma'am. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Shikha Vashisht, Assistant Professor, DHA. I would like to pay my gratitude to PC Sir, Professor N.K. Taneja, Director, Professor Jay Mala, and our Head Professor, Neelu Jain Gupta ma'am, for their constant and rigorous support for taking DHA on a higher vision of excellence. I would like to thank Dr. Avnish Tyagi for her precious time she took to help our students with so much knowledgeable aspects of organization behavior, that is learning, process, theory, and practices. I'm sure the students must have been benefited a lot from this webinar. I would like to thank our team of DHA faculties, Dr. Madhav Saraswat, Dr. Anita Jain, Dr. Priya Singh, Mr. Mani Garg, and Ms. Neha Garg for making this webinar happen so well. Last but not the least, I would say a big thank you to our students for listening so patiently and attentively to this webinar. With this, I would like to wrap up this session. Everyone stay home, stay safe. Stay home, stay safe. Priya ma'am, unmute yourself. Unmute yourself. Yeah. I just wish to say thanks to Dr. Shikha, to Dr. Madhav, to Mr. Mani, Ms. Neha, Dr. Anita ma'am, and moreover, last but not least, on above and top of the all, Dr. Neelu Jain Gupta ma'am, who is, I think she is not there right now, but I would like to thank her. Without her support, it was not possible. And thank you, Dr. Navneesh ma'am, for coming here and for this wonderful session with us. Thanks a lot. Thank you, students. If you have any other query, you can write me. I can forward your queries to ma'am, and we can have a session again in future. So, okay, that's all for today's session. Bye-bye. Stay home. Stay safe. Thank you very Okay, much. bye-bye. Thank you. Thank you, ma'am. Goodbye. Welcome. Yes, you can unmute yourself and you can say bye-bye to ma'am. Bye bye. Bye bye. Bye bye, ma'am. Bye, children. Bye bye, ma'am. Bye bye. Leave. Oh. Bye-bye, Shikha ma'am. Bye. Bye, Priya ma'am. Bye, ma'am.